Good morning to all. In previous lecture, we have already seen dewatering of foundation by pumping methods. There are four methods of dewatering of foundations. We have already seen that those four methods. Now, in today's session, we will see what is under rim pile foundations, advantages of under rim pile foundations, disadvantage of under rim piles, and situation under which rim pile foundation is adopted. So, first of all, what is under rim pile foundations? The under rim piles are the best solution for the foundation problems in black cotton soil or such similar type of expensive soil. They are board cast in situ concrete piles having bulb shape and large base. Now, first of all, I will show you the diagram of under rim pile foundation. So, this is the diagram of under rim pile foundation. We can see here there are single under rim piles and double under rim piles. There are So basically we have already discussed in previous lecture what is cast in situ concrete piles, what is black cotton soil. Okay. In this type of foundation, the structure is anchored to the ground at a depth where ground moment due to change in moisture content is negligible. A pile having one bulb is known as single unrimmed pile. As अभी मैंने आपको बताया जैसे सिंगल अंडर रिम पाइल एंड डबल अंडर रिम पाइल. डायग्राम में as you can see in diagram, this is the single under rim piles, means one bulb is there, okay, and double under rim piles means there are two bulb in double under rim piles. A pile having one bulb is known as single under rim pile, and the load bearing capacity can increase the number of bulbs, and the pile is known as multi under rim piles. So basically हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्लैक कॉटन सॉइल कैसा है, क्या है. ब्लैक कॉटन सॉइल इज वन टाइप ऑफ सॉइल. एक टाइप है सॉइल की ब्लैक कॉटन सॉइल, और वहाँ पे मतलब जैसे कोई सॉइल ऐसी है कि जहाँ पे आप फाउंडेशन नहीं कर सकते, कोई सॉइल ऐसी है बहुत ही वहाँ पे चिखल है, वहाँ पे पानी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है वो पार्टिकल्स में, सॉइल के पार्टिकल्स में, बराबर है. या फिर बोल सकते हैं कि उसको वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है वो सॉइल के पार्टिकल्स में, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि आप तुरंत ही एक्सकावेशन करके वहाँ पे फाउंडेशन बना सकते हैं. लेकिन वहाँ पे वैसे सिचुएशन में, वैसे पर्टिकुलर प्लेस में अंडर रिम पाइल फाउंडेशन करना बहुत ही ज़रूरी है. तो वहाँ पे वैसे प्लेसेस में अंडर रिम पाइल फाउंडेशन कर सकते हैं. वही सॉल्यूशन है वहाँ पे वैसे प्लेस पे कि आप अंडर रिम पाइल करके वहाँ पे फाउंडेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो एक टाइप है, तो ये जो सॉइल का एक टाइप है, मतलब वो सॉइल एक्सपेंसिव है, ये फाउंडेशन भी थोड़ा एक्सपेंसिव है. तो लेकिन वहाँ पे वो प्लेस पे कोई अदर अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि आपको ये अंडर रिम पाइल से आप फाउंडेशन कर सकते हैं. So now my point is, what is precast piles, what is cast in situ piles, what is pre-stress concrete piles. हमने ऑलरेडी ये तीन टाइप डिस्कस किया है. किसमें डिस्कस किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल. there are three types of classification of piles depending upon the
There are three types of classification of piles depending upon the material. First is timber piles, second one is concrete piles and third one is steel piles. हमने already देखा है, इसमें ही देखा है piles में, बराबर है. क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल. तो अब कास्ट इन सिटू पाइल्स क्या है आपको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है. दिस पाइल्स आर मतलब कास्ट इन सिटू पाइल्स आर कास्ट इन पोजीशन ऑन साइट इनसाइड द ग्राउंड. मतलब जहाँ पर आपका साइट है, जहाँ पर आपको पाइल्स चाहिए, फाउंडेशन बनाने हैं, वहाँ पे ही रेडी करके ग्राउंड पे, वहाँ पे ही ग्राउंड पे या साइट पे आप रेडी करके डायरेक्टली वो पाइल्स गाड़ सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं आप कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल्स. ओके, अब वहाँ पे आपको ऑलरेडी जहाँ पे आपका साइट चल रहा है, जहाँ पर आपको फाउंडेशन बनाना है, वहीं पे आपको पाइल्स गाड़ने हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आप वैसे शेप में, मतलब हैविंग बल्ब शेप में एंड लार्ज बेस पे आप पाइल्स बना सकते हैं फॉर द फाउंडेशन. ओके, in this type of foundation, the structure is anchored to the ground at a depth where ground movement due to change in moisture content is negligible. A pile having one bulb is known as single underrim pile, and the load bearing capacity can increased by increasing the number of bulbs, and the pile is having a multi underrim piles. मतलब जैसे एक बल्ब आपने बनाया, ये अंडर रिम पाइल में एक बल्ब का आपने पूरा पाइल बनाया, लेकिन उससे ही आपका क्या है, लोड बेरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करने के लिए, अगर वन बल्ब से इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब वो लोड नहीं ले रहा है, तो लोड कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज करने के लिए मल्टी अंडर रिम पाइल के फाउंडेशन बनाने पड़ेंगे. ओके, सो next point is by using hand auger or machine auger, the hole may be bored, and for greater depth extension rods are attached to auger. अब what is hand auger और machine auger? hand auger और machine auger मीन्स एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप सॉइल सैंपल निकाल सकते हैं फाउंडेशन करने के लिए. फाउंडेशन के लिए जो एस्कावेशन करते हैं, तो वो एस्कावेशन करने के लिए हैंड ऑगर से या मशीन ऑगर के थ्रू आप पूरे सॉइल निकाल सकते हैं. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक टूल या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू आप मिट्टी इजीली निकाल सकते हैं. By using hand auger or machine auger, the hole may be bored, and for greater depth के लिए extension rods are attached to auger. auger के नीचे extension rod अटैच करने पड़ते हैं, और उसके थ्रू greater depth के थ्रू भी आप greater depth में से भी आप सॉइल को इजीली निकाल सकते हैं. After boring up to desired depth, the base of the hole is enlarged in the form of bulb by using underlevel to rammer. After the pile holes are ready for concreting, reinforcement cages are lowered in the holes, and the concrete is poured with the help of funnel, and the casting is made at least 250 to 300 mm above the cut-off level, which after hardening is broken and the pile top is brought to the desired level. The diameter of the under rim bulb is normally 2.5 times the diameter of the pile stem. It may however vary from 2 to 3 times under special circumstances. मतलब ये जो डायग्राम में आप जो देख रहे हैं अंडर रिम, सिंगल अंडर रिम बल्ब, ठीक है, तो ये जो है पाइल्स जो है पाइल्स से 2.5 टाइम्स उसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए. और यहाँ पे भी
वन बल्ब एंड अदर बल्ब, सेकेंड बल्ब अंडर रिम बल्ब में भी वहां पे भी सेम, डायमीटर जो है वो पाई से कितना ज्यादा होना चाहिए, 2.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए. The diameter of the under rim bulb is normally 2.5 times the diameter of the pile stem. Now next is advantages. Advantages of under rim piles: used in black cotton soil. Second is used in made up grounds and waterlogged area. क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटरलॉग एरिया, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी चिखल वाला ही सॉइल है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रिम पाइल्स ही, वहाँ पे अंडर रिम पाइल्स ही गाड़ेंगे. बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ द पाइल, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कैन बी इंक्रीज. डायमीटर बल्ब का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे वन बल्ब है, अंडर रिम पाइल फाउंडेशन में वन बल्ब है या मल्टी बल्ब है, तो उससे क्या हो जाएगा, बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ अंडर रिम पाइल्स. हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बट ऑब्वियस है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पाइल्स जो है, पाइल्स के अंदर हम बल्ब बना रहे हैं. ड्यू टू, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा वहाँ पे बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है, इसलिए हम अंडर रिम पाइल्स में बल्ब बना रहे हैं. इसके लिए ये इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा. Second disadvantage of under rim piles is skilled worker are required for construction. Skill supervision is required. So there are the advantages of under rim piles and disadvantages of under rim pile. Situations under which rim piles foundation is adopted. It is preferred for construction in black cotton soil. Second, situations under which rim pile foundation is adopted is these piles are best suited in soils where considerable ground movement occur due to seasonal beam vibrations. So यहाँ पे आपका अंडर रिम पाइल फाउंडेशन खत्म हो रहा है. ये उसका डायग्राम है, ये पूरा पाइल फाउंडेशन है. यहाँ पे एक बल्ब है जिसको हम बोलेंगे सिंगल अंडर रिम पाइल्स. यहाँ पे ये दूसरा पाइल है जिसमें मल्टी तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे दो बल्ब है अंडर रिम पाइल्स में. अंडर रिम पाइल फाउंडेशन जनरली हम ब्लैक कॉटन सॉइल जहाँ पर है तो वहीं पे हम ये फाउंडेशन प्रेफर करेंगे. वो सिचुएशन पे, वहाँ पे, वो प्लेसेस पे हम, सॉल्यूशन ही वही है. तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो है जहाँ पर, जो प्लेसेस पे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अंडर रिम पाइल फाउंडेशन गाड़ेंगे. दे बोर्ड कास्ट इन सिचु कॉन्क्रीट पाइल्स having bulb shape and large base. So अंडर रिम पाइल फाउंडेशन एग्जाम में 2 से 3 बार आया है, उसको अच्छे से देखना है. बाकी के जो पाइल फाउंडेशन है उसमें और अंडर रिम पाइल फाउंडेशन में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस जो है वो क्या है कि ये ज़्यादा डेप्थ के लिए उसका अंडर रिम पाइल फाउंडेशन का यूज़ होता है अगर जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है. तो बट ऑब्वियसली वहाँ पे आपको 1.5 मीटर या 2 मीटर के डेप्थ में हार्ड बेस नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है. तो उसके लिए आपको पाइल्स गाड़ने पड़ेंगे. तो वो पाइल्स में अगर आपने अंडर रिम पाइल्स, मतलब बल्ब बना के आपने अगर वो पाइल्स डाले अंडर रिम पाइल फाउंडेशन, तो वहाँ पे ऑलरेडी हार्ड बेस नहीं अवेलेबल है, इसीलिए बल्ब बना के अगर पाइल्स डालेंगे, अंडर रिम पाइल फाउंडेशन डालेंगे, तो वो लोड गेन कर पाएगा, ठीक है. क्योंकि उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू
पाइल फाउंडेशंस, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्लेसेस पे हम अंडर रिम पाइल फाउंडेशन ही गाड़ सकते हैं। ओके, तो उसके एडवांटेजेस भी हमने देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, सिचुएशन अंडर विच रिम पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड, कहाँ पे अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से प्लेसेस पे अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में अंडर रिम पाइल फाउंडेशन गाड़ने चाहिए, वो भी हमने ऑलरेडी देखा। अब और दो टॉपिक बाकी है, प्रिकॉशंस व्हाइल मार्किंग फाउंडेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्रिकॉशंस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशन इन ब्लैक कॉटन सॉइल। ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।